Okay, write down next question. Now, since it's an extra problem, okay, I will just number it out. Okay, write down question number 5. Fifth question लिखो आप. Heading remains the same. This is under type 2. We are doing type 2. That is factorization method में ये fifth problem है. Okay. So now the question heading is remaining the same. Evaluate the following. Okay. देखो L is equal to. Sir. Yes. In factorization, it's fourth. Okay, in factorization it is fourth. Okay, चलो. Question number 4 लिखो. ठीक है. Okay, लिखो limit y is tending towards half. This is 8y cube minus 1 upon 4y cube minus y. Okay, just note down the question. We'll start solving it. Limit y is tending towards half. 8y cube minus 1 upon 4y cube minus y. Now observe students, recollect last time we have checked the form. Indeterminate form था 0 by 0. Okay. So now when we were substituting the value of the limit, both numerator as well as denominator was becoming 0. Okay. So when you will put y का value half, you'll observe that your numerator also becomes 0. देखो half डालोगे तो 8 into 1 by 8. So ये 1 minus 1 numerator also becomes 0, and you'll observe your denominator also becomes a 0. So this is 0 by 0 form as we did last time. अभी एक ही डिफरेंस है प्रॉब्लम में कि जो लास्ट टाइम हमने एग्जांपल्स किए ना स्टूडेंट, वो सब x के फॉर्म में थे, अब ये y के फॉर्म में है. तो देयर इज नो रूल एज सच कि x के फॉर्म में ही प्रॉब्लम आएगा. y के फॉर्म में भी आ सकता है, z के फॉर्म में भी आ सकता है, t के फॉर्म में भी आ सकता है. जनरली प्रॉब्लम्स x के फॉर्म में आते हैं, बट लेट अस डू इन सम अदर वेरिएबल्स आल्सो. ठीक है. नाउ वी डोंट यूज सिंथेटिक डिवीजन. दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम इन दिस प्रॉब्लम. Now numerator में we will use the formula of a cube minus b cube, and denominator में from both the terms we will be taking y common. See, in mathematics also observation plays a very important role. Okay, चलो write down 0 by 0 form लिखो आप. तो ये हमारा indeterminate form है. चाहिए तो डाल के आप बाद में देख लेना. 0 by 0 form है. I've shown you right now. Now let's apply the formula. Let's first simplify. तो लिखो therefore L is equal to limit y is tending towards half. 8y cube will be written as 2y the whole cube, and 1 will be written as 1 cube upon denominator में. ठीक है ना. अब मैं थोड़ा डायरेक्टली लिख रहा हूँ. देखो आप डिनोमिनेटर में क्या है, इट इज 4y cube minus y. आपके रेफरेंस के लिए साइड में लिख रहा हूं मैं. 4y cube minus y में से y कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में 4y square minus 1 बचेगा. तो टू सेव टाइम, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, फ्रॉम दीज टू टर्म्स y will come common, and 4y square can be written as 2y the whole square minus 1 can be written as 1 square. Close this bracket and close the main वाला bracket. ठीक है. इधर से ये स्टेप कैसे मिला, तो देखो मैंने साइड में आपको वर्किंग करके बता दिया. दिस इज नॉट कंपल्सरी टू बी शोन. इसके बाद आप ये डायरेक्टली लिख सकते हो. हाँ, तो प्लीज चेक. आई होप द फर्स्ट स्टेप इज अंडरस्टूड टू एवरीवन व्हाई वी आर डूइंग सो. क्लियर है? यस सर. हाँ, ठीक है ना. तो ऑब्जर्वेशन करने का, रट्टा नहीं मारने का. प्रॉब्लम्स को रट्टा नहीं मार सकते. कंसेप्ट्स यू नीड टू रिमेंबर. ठीक है. ये सिंथेटिक से भी हो सकता है, बट सिंथेटिक से टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका एग्जाम में. चलो, नाउ लेट्स अप्लाई a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला ओवर हियर. ये मैं रब कर देता हूँ. ठीक है ना. एंड इन द डिनोमिनेटर वी विल अप्लाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला. है ना. तो चलो लिखो
So therefore L is equal to limit y is tending towards half. ठीक है, a cube minus b cube का फॉर्मूला which we need to apply. ठीक है, तो चलो, can anyone tell me the formula for a cube minus b cube? If anyone can tell me a cube minus b cube का फॉर्मूला कोई बता सकता है? Any one of you? Yes, it is a minus b into a square plus ab plus b square. देखो फॉर्मूलेज आपको सारे आने चाहिए. आप प्रॉब्लम करते वक्त ये बोल नहीं सकते कि मेरे को ये फॉर्मूला नहीं आता है. एग्जामिनर को उससे कुछ मतलब नहीं है. लिखा रहेगा तो मार्क्स मिलेगा, नहीं लिखा रहेगा तो वो भी ब्लैंक ही छोड़ देगा अपने जैसा. ठीक है ना? तो दैट कैन नॉट बी अ रीजन कि मेरे को नहीं आता है. चलो, so let's apply the formula of a cube minus b cube. ठीक है, तो what will that give us? 2y minus 1 into 1 bracket. ठीक है, another bracket a का square. ठीक है, तो this will give us 2y the whole square plus a into b. 2y into 1 is 2y plus b square, तो 1 का स्क्वायर आएगा. Now denominator में y already present, a square minus b square is a minus b into a plus b. तो न्यूमरेटर में a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला. नोट डाउन इफ यू वांट. वापस लिख के नहीं दूंगा मैं, या आप देख लो. Already I have given you several times earlier also. Now we cancel the common factor. So what is the common factor? So it is 2y minus 1. So 2y minus 1 common factor cancel हो जाएगा. ठीक है, अब जो बच गया हमारे पास वो लिखते हैं. So therefore L is equal to limit y is tending towards, this is 4y square plus 2y plus 1 whole upon, in the denominator it will be y into 2y plus 1, close the bracket. This is left out after cancelling the common factor. Reason is not compulsory. Cancellation का in earlier 3-4 examples I have already written them. कैंसिल हो गया कॉमन फैक्टर, जो बच गया वो लिखा. ओके, नाउ recollect last time I have told to you that whenever we are solving the problem, अगर डिनोमिनेटर नॉन जीरो है तो वैल्यू डालने का. तो नाउ यू ऑब्जर्व, ये भी पॉजिटिव टर्म है, ये सिंगल टर्म है, तो y का वैल्यू हाफ डालेंगे तो डिनोमिनेटर इज नॉट गोइंग टू बिकम जीरो. तो बस y का वैल्यू हाफ डालो एंड गेट द आंसर. चलो solve it and tell me what is the answer. Evaluate and tell me the final answer, value of the limit. I repeat, y का value half डालो in the numerator as well as in the denominator. Solve and tell me the answer. ठीक है, so what will happen for the numerator? चलो let's check. 4 remaining same. y का वैल्यू 1/2 डालोगे तो 1/2 का स्क्वायर, तो that's 1/4 plus 2 into 1/2 plus 1 whole upon, in the denominator y का वैल्यू हाफ upon 2 into half plus 1. चलो, now at least solve and tell me quickly within 10 seconds what is the answer. Simplify करके फटाफट आंसर बताओ मेरे को अभी इसका. Come on, be fast. Tell me the final answer. It should not take so much time. Yes, 3. Correct, आकाश. ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया,
ये 1 + 1 2 हो जाएगा, वो 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 4 इसके साथ गया, ये 2 इसके साथ गया, तो 1 + 1 + 1 आंसर इज 3। इससे ज्यादा टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए। दैट्स इट, प्रॉब्लम इज ओवर। सो द वैल्यू ऑफ द लिमिट टू बी इवैल्यूएटेड इज 3। ये 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 into हाफ तो वो 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज 3, प्रॉब्लम इज ओवर। ठीक है, चलो लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नाउ एज आई सेड द प्रॉब्लम कैन बी इन एनी फॉर्म। अभी यही सेम प्रॉब्लम, हाँ, अगर एग्जाम में आपको ऐसा दे दिया, जनरली दे डोंट मेक चेंजेस, द वेरिएबल्स दैट दे यूज इज x एंड y ओनली, मैक्सिमम तो x ही यूज होता है, बट y भी कर दिया। बस सपोज यही प्रॉब्लम अगर आपको ऐसा दे दिया कि लिमिट t इज टेंडिंग टुवर्ड्स हाफ, ऐसा दे दिया, हाँ, 8t³ - 1 अपॉन 4t³ - t ऐसा दे दिया, तो यू कैन से अरे ये तो हमको आशीष सर ने सिखाया नहीं टी वाला प्रॉब्लम कैसे करने का, तो मतलब टी वाला भी ले एक्स वाला भी ले वाई वाला भी ले, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो एक्स वाले पहले 4 लिए, ये वाई लिया, ये टी है, कुछ भी वेरिएबल जेड भी यूज किया तो भी मेथड यही रहने वाला है। ओनली द वेरिएबल्स कैन कीप ऑन चेंजिंग, so that is not a problem, method should be known to you. Okay, so chalo let's move on to the next question. Okay, please note down the next question, students. Exercise 7.2, Roman question 2, problem number 4. But the problems that we are doing in that order, it is question number 5. Okay, limit delta x tending towards 0, and this is to be evaluated. This is delta x, capital delta. Okay, now we'll use a plus b the whole square का formula. यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे। ओके, तो चलो लेट्स expand this, a plus b the whole square का formula. तो लिखो therefore L is equal to, okay, if this question is asked, it's just going to carry 2 marks. तो एकदम सिंपल है। तो लिखो लिमिट delta x is tending towards 0. So when I expand this, what will this become? X square plus 2x into delta x plus delta x the whole square. a plus b the whole square का फॉर्मूला अप्लाई किया, a square plus 2ab plus b square, -2 से ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो -2x -2 delta x plus 1 will remain same, and all these signs will change, so it's -x square, +2x and -1, सबका साइन चेंज हो गया ये वाले टर्म्स का। Whole upon, in the denominator we have delta x, close the square bracket. कुछ नहीं किया हमने, we have just expanded and opened the brackets in the numerator. Okay, now let us carry out the cancellations that are possible. Cancellations करते हैं, तो अब देखो ऑब्जर्व करो, ये +x², ये -x² कैंसिल हो गया, ठीक है। Then what get cancelling? Yeah, it's -2x and +2x is getting cancelling, is being cancelled. +1 -1 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कौन से 3 टर्म्स बच गए? ये और ये, these 3 terms are remaining. Okay, I'll just underline for your reference. Check out. एक तो ये टर्म बच गया, एक ये टर्म बचा और एक ये टर्म बचा। अभी आप तीनों टर्म्स देखो, तीनों टर्म्स में से डेल्टा एक्स कॉमन आ जाएगा। The common factor to all the 3 terms is delta x. So write down next step. Therefore, L is equal to limit delta x is tending towards 0. ठीक है, डेल्टा x टेकन कॉमन, तो यहां से अपने पास ब्रैकेट में बचेगा 2x. From here we will be left out with delta x, and from here we will be left out with -2. क्या किया? ये तीनों टर्म्स में से डेल्टा x को कॉमन निकाला। होल अपॉन डेल्टा x is already present. Now as we can see, delta x is a common factor. डेल्टा x is a common factor, तो ये डेल्टा x कैंसिल हो गया।
now let us evaluate the limit. Let us evaluate the limit. तो लिखो therefore L is equal to, now इसमें there is no delta x, so 2x, x will not be affected. Delta x means it's a very small quantity, so 2x will not be affected, so 2x remaining same, plus delta x tending towards 0. Limit delta x tending towards 0 of delta x will be 0 minus 2. डेल्टा x के जगह पे 0 डालने का है, तो ये तो x का क्वांटिटी है, देयर इज नो चेंज, 2x विल रिमेन 2x, डेल्टा x के जगह पे 0 डाल दिया, माइनस 2 रिमेनिंग सेम. So what is the final answer? It is 2x minus 2. So the value of the limit that we have to evaluate, so the final answer is this itself. ये हमारा final answer है. Okay, problem is over. If you have any doubt or confusion, you can ask. To solve this problem, exercise 7.2 Roman question 1 का first problem है, but अपने लिए 6th question है students. Limit z is tending towards 2. अभी सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि न x दिया है न y दिया है, जो वेरिएबल यूज किया है वो z दिया है, और फैक्टराइज करके ही आपको इसको सॉल्व करना है. हो गया कि प्लीज लेट मी नो द आंसर. ओके, प्लीज स्टार्ट डूइंग. ओके, चलो ठीक है, एक बार देख लेते हैं फैक्टर्स क्या है. L इज इक्वल टू लिमिट, ठीक है, z इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2. ठीक है. ओके, नाउ समवन टेल्स मी द फैक्टर फॉर द न्यूमरेटर. z minus 3, z minus 2. करेक्ट, वेरी गुड. z minus 3 into z minus 2. डिनोमिनेटर के फैक्टर्स आपको मालूम है, z plus 2 into z minus 2. ठीक है ना, z minus 2 कैंसिल हो गया. ठीक है, z का वैल्यू आप 2 डालो, तो आंसर द वैल्यू ऑफ द लिमिट इज नथिंग बट -1/4. प्रॉब्लम इज ओवर. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन खाली आपको 1 मार्क के लिए आएंगे. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू, ऑनलाइन एग्जाम हुआ 11th स्टैंडर्ड का. दे लास्ट यू दिस क्वेश्चन, इवैल्यूएट द फॉलोइंग. फैक्टराइज करने का ऑन अ पीस ऑफ अ पेपर एट योर होम, सॉल्व, टिक मार्क द आंसर, प्रॉब्लम इज ओवर. तो ऐसा माइंड में रखो मत कि x ही आएगा, y आएगा, z आएगा, कुछ भी आ सकता है, t आ सकता है. मेथड वही है, फैक्टराइज करने का, 0/0 फॉर्म में इवैल्यूएट करने का. हाँ, ओनली वन थिंग यू रिमेंबर दैट व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, ओके, आई हैव टोल्ड यू लास्ट टाइम, आई विल रिपीट वंस अगेन, कि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो इन द बिगिनिंग, इफ इट इज 0/0 फॉर्म, अगर वो 0/0 फॉर्म है तो आप वैल्यू डालोगे नहीं. 0/0 does not mean answer is 0. If it is 0/0 form, then you factorize or do something else, which we are going to learn ahead. ठीक है. अगर न्यूमरेटर नॉन जीरो है, डिनोमिनेटर नॉन जीरो है, वैल्यू डालो, आंसर मिल जाएगा आपको, नो प्रॉब्लम. अगर न्यूमरेटर जीरो है, डिनोमिनेटर नॉन जीरो है, तो भी वैल्यू डालो. कुछ कुछ जैसे एग्जांपल्स है टेक्स्ट बुक में, आप देखोगे ना, तो स्टार्टिंग में न्यूमरेटर जीरो होता है, डिनोमिनेटर नॉन जीरो रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू डालो, दिस इज गोइंग टू बिकम 0. अच्छा, किसी किसी प्रॉब्लम में सॉल्व करने के बाद, इनिशियली तो नहीं होगा, बट सॉल्व करने के बाद ऐसा हो सकता है कि न्यूमरेटर नॉन जीरो है और डिनोमिनेटर जीरो है. तो न्यूमरेटर जीरो, न्यूमरेटर नॉन जीरो, डिनोमिनेटर इज जीरो. दिस इज नॉट डिफाइंड वाला केस. दिस इज नॉट डिफाइंड वाला केस. इन दिस केस वी हैव टू राइट डाउन दैट लिमिट does not exist. ऐसा लिख लो आप. ऐसा आंसर आया ना, कि कभी भी at any point in the problem, स्टार्टिंग में रहे या बीच में रहे, अगर न्यूमरेटर नॉन जीरो है और अगर डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है, तो आपको क्या लिखना है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. मतलब हम इसको इवैल्यूएट नहीं कर सकते, बिकॉज यू नो, यू हैव टॉट इन लोअर स्टैंडर्ड्स में अपने को सिखाया जाता है कि न्यूमरेटर जीरो है, न्यूमरेटर नॉन जीरो है, डिनोमिनेटर जीरो है, तो इट इज नॉट डिफाइंड वाला केस है. तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट इन सच अ केस. ये आया तो आंसर 0 है, ये आया तो वैल्यू मिल जाएगा, ये आया तो डालना नहीं है आपको, देन यू हैव टू फैक्टराइज एंड सॉल्व. प्लीज चेक, आई हैव ऑलरेडी गिवन टू यू लास्ट टाइम आल्सो इन दिस, बट ये समझना चाहिए. व्हाई आई एम टेलिंग यू, क्योंकि अपने को मालूम पड़ना चाहिए ना लिमिट कब डालने का है. अब कैसे मालूम पड़ेगा इसके बाद लिमिट डालने का है कि नहीं, तो x का वैल्यू 2 डाल के देखेंगे ओरली. डिनोमिनेटर 0 नहीं आ रहा है, डिनोमिनेटर 0 नहीं आ रहा है, वैल्यू डाल देने का.
सीधा सीधा हिसाब है. ओके, चलो, so let's move ahead.